Hello everyone, let us start with chapter 1, that is reproduction in lower and higher plants. So let us first see what is reproduction. Reproduction होता क्या है? तो reproduction is the production of young one like parents. Parents अपनी तरह new young ones को जन्म देते हैं और इस process को हम reproduction कहते हैं. Reproduction is an essential process या फिर important process. क्यों important process है? As it leads to continuation of species as well as maintains the continuity of life. मतलब जो different species है या फिर जो different organisms है उनके continuation के लिए, ताकि वो extinct ना हो या disappear ना हो और उनकी life की continuity को maintain करने के लिए reproduction एक important process है. Each organism has its own particular method of reproduction. मतलब जो भी organisms है, plants हो या animals हो, हर एक का method या फिर mode of reproduction अलग होता है. उन modes या फिर उन methods of reproduction को हम दो categories में divide करते हैं. First one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. तो पहले देखते हैं asexual reproduction क्या है. Asexual reproduction does not involve fusion of two compatible gametes or sex cells. यानी asexual reproduction में gametes दो टाइप के होते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट या फिर जिन्हें हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं. इनका कोई फ्यूजन नहीं होता, मतलब गैमेट्स का कोई फ्यूजन नहीं होता. यानी asexual reproduction में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते. It is the process resulting in the production of genetically identical progeny from a single organism and inherits the genes of the parent. Asexual reproduction एक ऐसा process है जो genetically identical progeny या new generation produce करता है only from a single organism या फिर एक single parent, और जो नया progeny है या फिर जो new generation रहेगा वो parent से ही अपने में genes को inherit करता है. Such morphologically and genetically identical individuals are called as clones. और ऐसे individuals जो morphologically and genetically identical होते हैं उन्हें हम clones कहते हैं. Clones यानी exact copy of their parents जो exactly parents की तरह दिखते हैं. अब asexual reproduction के भी कुछ types है, यहाँ पे कुछ mention किए गए हैं. पहला वाला है fragmentation. Fragmentation में क्या है? Multicellular organisms can break into fragments due to one or other reason. Example दिया है यहाँ पे Spirogyra का. These fragments grow into new individuals. मतलब fragmentation में क्या होगा? जो multicellular organisms है या फिर जो multicellular plants है वो fragments में break down हो जाते हैं. Fragments यानी छोटे छोटे parts में break down हो जाएगा और यही fragments फिर आगे जाके एक नए individuals में grow होते हैं. Second दिया है यहाँ पे, that is budding. It is the most common method of asexual reproduction in unicellular yeast. Budding का example दिया है यहाँ पे yeast का. It takes place by producing one or more outgrowths and these buds on separation develop into new individual. मतलब budding क्या है? सबसे common method है asexual reproduction का. Mostly ये unicellular organisms में होता है. बडिंग में क्या होगा? जो पेरेंट बॉडी है उसी में से एक छोटा सा बड यानी आउटग्रोथ है या फिर बॉडी का एक पार्ट रहता है बाहर आता है और जैसे ही ये बड डेवलप हो जाता है पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर या फिर सेपरेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन. In Chlamydomonas, asexual reproduction occurs by flagellated motile zoospores which can grow independently into new individuals. अब spore formation में क्या होता है? जो parent body है वो spores produce करता है. यहाँ पे example दिया है Chlamydomonas का. Chlamydomonas में क्या होगा? Parent body के अंदर zoospores produce होते हैं. These zoospores are flagellated and motile. Flagellated यानी ऐसा organism या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको फ्लैजेला होता है. अब फ्लैजेला क्या है? इट इज नथिंग बट अ टेल लाइक स्ट्रक्चर और ये मोटाइल है. मोटाइल यानी जो मूव कर सकता है. और भी मेथड्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इन्हें हम इतना डिटेल में नहीं स्टडी करने वाले अपने पोर्शन में. तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं जैसे बाइनरी फिशन है, कोनिडिया फॉर्मेशन है और जेम्यूल फॉर्मेशन है. नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. Plants reproduce asexually through their vegetative parts.
प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली उनके वेजिटेटिव पार्ट्स से। वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे स्टेम हुए, रूट्स हुए, लीव्स, ब्रांचेस एक्सेट्रा। और जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो पेरेंट्स से जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली नेचुरली होता है, बट कुछ ऐसे मेथड्स है जो नेचुरली नहीं यूज हो सकते प्लांट्स में। ऐसे मेथड्स को हम आर्टिफिशियली इम्प्लीमेंट करते हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स का एक बेनिफिट है कि हम डिजायर्ड वैरायटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट्स के अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। There are various methods of vegetative reproduction. Few of them are given below. So the first one is cutting. Cutting the small piece of any vegetative part of a plant having one or more buds is used for propagation. Examples of cutting are rose and blackberry. कटिंग में क्या होगा? कटिंग सबसे सिंपल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। इसमें क्या होता है, प्लांट्स जो है उनके वेजिटेटिव पार्ट को कट किया जाता है और उसे एज अ न्यू प्लांट ग्रो किया जाता है। सेकेंड वन दिया है यहाँ पे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होगा? पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंट इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज अ वन प्लांट, एंड इन दिस मेथड पार्ट ऑफ द स्टेम containing one or more bud is joined onto a rooted plant called as stalk is called as grafting. ग्राफ्टिंग के एग्जाम्पल्स है एप्पल, पियर, रोज एक्सेट्रा। ग्राफ्टिंग में क्या होगा? दो अलग प्लांट्स लिए जाते हैं, उसमें से एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को कट किया जाता है और जो दूसरा प्लांट रहेगा उसको हम रूटेड प्लांट कहते हैं। फिर इस वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट को और इस रूटेड प्लांट को ज्वाइन कर देते हैं। जिस पार्ट को अटैच करते हैं या फिर जो वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का उसे हम सियोन कहते हैं और जो रूटेड प्लांट है उसे स्टॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। Tissue culture, it is a method by which a small amount of plant tissue is carefully grown to give many plantlets, and micropropagation method is also used nowadays. Tissue culture एक important process है। इसमें क्या होगा? जो प्लांट टिश्यू है उसे ग्रो किया जाता है ग्रोथ मीडियम में टू प्रोड्यूस मेनी प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स यानी छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड भी यूज होता है ज्यादातर। माइक्रो प्रोपोगेशन एक टाइप का टिश्यू कल्चर ही है जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल प्लांट। ओके, तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। It involves fusion of two compatible gametes or sex cells. Unlike asexual reproduction, sexual reproduction में gametes involve होते हैं, यानी gametes का fusion होगा, मतलब मेल और फीमेल gametes एक साथ आएंगे। In plants, the end of the juvenile or vegetative phase marks the beginning of reproductive phase and can be easily seen in the higher plants at the time of flowering. मतलब क्या? प्लांट्स के केसेस में क्या होता है, जैसे ही जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज एंड हो जाता है उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज को हम हायर प्लांट्स में या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, उनमें हम ये रिप्रोडक्टिव फेज ऑब्जर्व कर सकते हैं। Sexual reproduction involves two major events, that is meiosis and fusion of gametes to form a diploid zygote and the production of genetically dissimilar offspring. Sexual reproduction में दो major events होते हैं, एक है meiosis and दूसरा है fusion of gametes. Gametes जब fuse होते हैं तो वो एक diploid zygote form करते हैं and due to this fusion ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे वो जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे, मतलब जो न्यू जनरेशन या फिर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह नहीं दिखेंगे, पेरेंट्स को आइडेंटिकल नहीं होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टराइज होता है बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आफ्टर दिस फ्यूजन या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म होता है एंड देन एम्ब्रियो फॉर्म होगा जिसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। Sequential events that occur in sexual reproduction are grouped into three distinct stages, that is pre-fertilization, fertilization and the post-fertilization. Sexual reproduction कुछ sequential events follow करता है
जिन्हें 3 स्टेजेस में ग्रुप किया जाता है। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, दैट इज फर्टिलाइजेशन के पहले, सेकेंड फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के वक्त, एंड थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दैट इज फर्टिलाइजेशन के बाद। The flower is a specialized reproductive structure of a plant in which sexual reproduction takes place. Plants में जैसे vegetative parts होते हैं वैसे ही reproductive parts भी होते हैं. Reproductive part of a plant is flower. Flower plants का reproductive part का काम करता है और इसी flower में फिर sexual reproduction possible होता है. The function of a flower is to produce haploid gametes and to ensure that fertilization will take place. फ्लावर का मेन फंक्शन है टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स दैट इज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ताकि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो. टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट वॉल्स दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. एक टिपिकल फ्लावर के 4 वॉल्स या फिर 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और फ्लावर के पार्ट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्रैगमेंटेशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन. और सेकेंड हमने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर. फिर हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और डिटेल में स्टडी करेंगे.